Good morning, dear students, and welcome in the class. This is your first class of SST, and today I am gonna teach you lesson first, the discovery of fire. This is the first lesson of your class, the discovery of fire. In this lesson, we will learn different thing about the early man. In this lesson, we will learn different thing about the early man. In the first picture, you can see the early man. This is in this first picture. You can see the early man. So, do you know? Who was the early man? So, children, do you know who was the early man? Early man means the first man on the earth. The first man on the earth was the early man. So in this lesson we will learn the different thing about them, about their life, about their food or the cloth of the early men, the weapon they use, or the house, the shelters where they live. So this is gonna very important to all of you. So please pay the attention. And now look at the book. This is very important chapter to all of you. So please look at this. So you have already learned in the previous classes that the life of the early man was difficult. He led a hard life. He lived in cave. He was always in fear of wild animals. There was no food to eat. He collect he collected the fruits of the tree and root of plants from place to place. He also killed small animals and birds and ate their raw flesh. He didn't wear anything. He lived bare bodies. Slowly he learned to kill the big animals. He made tool and weapon to kill them. He also learned to cover his body with the leaf and the barks of tree and skin of animal. But he still had to eat raw flesh. Once he saw the forest burning. It was fire. First he was afraid of it, but he fall he felt warm near it. So as you can see in the first picture, this is the early man. Look at the beard. Look at the beard. Look at the beard. And look, he is totally naked. So this is the early man. तो जो अर्ली मैन की लाइफ थी दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस. तो हम लोगों से टोटली डिफरेंट उनकी लाइफ थी. वो एक बहुत हार्ड लाइफ को लीड करते थे. ही लिव्स इन केव. वो गुफाओं में रहते थे. दे डोंट हैव द हाउस द शेल्टर लाइक अस. उनके पास हमारी तरह घर नहीं होते थे. ही लिव्ड इन केव्स एंड ही ऑलवेज इन फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. क्योंकि वो गुफाओं में रहते थे तो ही वॉज ऑलवेज इन फियर. तो वो हमेशा इस डर में रहते थे वाइल्ड एनिमल्स से. देयर वॉज नो फूड टू ईट. उनके पास खाने के लिए भी फूड नहीं था. ही कलेक्टेड द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज एंड रूट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. So he had no food like us, he had no houses like us, he has no luxurious or cotton cloths like us. They are spending their life is the life they are spending that was very हार्ड. तो उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास पहनने के लिए नहीं था. वो खाने के लिए जगह जगह जाके फ्रूट कलेक्ट करते थे, रूट्स ऑफ द ट्रीज़ कलेक्ट करते थे. ही ऑल्सो किल्ड स्मॉल एनिमल एंड बर्ड एंड एट देयर रो फ्लैश. और वो जगह जगह जाके जैसे फ्रूट्स कलेक्ट करते थे तो वैसे ही वो छोटे छोटे जानवरों को, छोटे छोटे पंछियों को मार कर भी खाते थे. बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द फायर सो दे एट देयर रॉ फ्लैश. तो वो उसका कच्चा मांस ही खाते थे क्योंकि दे डोंट नो अबाउट द फायर. क्योंकि उनको फायर के बारे में पता ही नहीं था. बट ही डिडंट वियर एनीथिंग. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि
ये जो अर्ली मैन है इन्होंने कुछ भी नहीं पहना. दे कवर देयर सेल्फ विद अ लीफ, विद अ स्किन ऑफ द एनिमल्स. सो वो कुछ भी नहीं पहनते थे. ही लिव्ड बेयर बॉडी. स्लोली ही लर्न टू किल बिग एनिमल्स. और धीरे धीरे उन्होंने बड़े जानवरों को मारना सीखा. ही मेड टूल्स एंड वेपन्स टू किल दैम. और जैसे ही धीरे धीरे उन्होंने मारना सीखा, उन्होंने कुछ टूल्स, कुछ वेपन्स बनाए उन बड़े जानवरों को मारने के लिए. एंड ही ऑल्सो लर्न टू कवर हिज बॉडी विद द लीफ एंड बार्क्स ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल. और उन्होंने टूल बनाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना सीखा. जैसे कि अपन पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है, और जो ट्रीज़ होते हैं, जो उनकी लीफ होती हैं, बड़े प्लांट्स की लीफ होती हैं, एनिमल स्किन होती है, वो पहनते थे. बट ही स्टिल हैड टू ईट रॉ फ्लैश. लेकिन उन्होंने वेपन बना लिए थे, उन्होंने बड़े जानवरों को मारना सीख लिया था, लेकिन वो अभी तक रॉ फ्लैश ही खाते थे. मतलब वो कच्चा मांस ही खाते थे, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द फायर. वंस ही सॉ द फॉरेस्ट बर्निंग. एक दिन उन्होंने देखा कि पूरा जो फॉरेस्ट था दैट वॉज बर्निंग. इट वॉज फायर. फर्स्ट ही वॉज एफ्रेड ऑफ हिम. तो सबसे पहले तो जब उन्होंने जंगल को जलता हुआ देखा तो ही वॉज एफ्रेड ऑफ इट, तो वो उससे डरे. बट ही फेल्ट वार्म नियर इट. लेकिन उनको उस आग से थोड़ी गर्माहट महसूस हुई. द फायर ऑल्सो लाइटेड द होल फॉरेस्ट. और जो फॉरेस्ट जल रहा था, तो द फायर ऑल्सो लाइटेड द होल फॉरेस्ट. तो जो फायर थी उसकी वजह से पूरे जंगल में रोशनी हो रही थी. द वाइल्ड एनिमल्स रेन अवे फ्रॉम द फायर. और फायर की वजह से, आग की वजह से, तो जो वाइल्ड एनिमल थे वो दूर भाग रहे थे. दे वेयर रेनिंग अवे. Whenever there was fire in the jungle, the early man would keep some fire burning for some time by putting in it dry grass, leaves, and wood. But now he wanted to have fire at his will. Once it so happened that some fire was produced when he was rubbing two stones. Thus, fire was discovered. तो जब तक जंगल में फायर थी, दे गॉट दे फेल्ट वार्म विद इट. बट उन्होंने, तो क्या होता था कि जैसे ही जंगल में आग लगती थी, द अर्ली मैन वुड कीप सम फायर. तो वो थोड़ी सी फायर लेके आके, थोड़ी सी आग लेके आके अपनी थोड़ी सी ड्राई ग्रासेस में और लीव्स और वुड्स में लगा लेते थे. बट नाउ ही वॉन्टेड टू हैव फायर एट हिज विल. लेकिन वो परमानेंट चाहते थे, वो खुद से चाहते थे कि आग कैसे जलाई जा सकती है, आग कैसे जलाई जा सकती है. वंस इट सो हैपेंड दैट सम फायर वॉज प्रोड्यूस्ड. फायर कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है. व्हेन ही वॉज रबिंग टू स्टोन. तो एक दिन वो टू स्टोन को रब कर रहे थे, दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे थे. दस फायर वॉज डिस्कवर्ड. और जब वो दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे थे तो उससे चिंगारी निकली और आग लग गई. वन डे वाइल ही वॉज सिटिंग नियर फायर. एक दिन जब वो आग के पास बैठे हुए थे, एज यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, they all are sitting around the fire and they are cooking something. So one day while he was sitting near fire and eating raw flesh of animals. तो एक दिन जब वो आग के पास बैठे हुए सभी लोग एनिमल का रॉ फ्लैश खा रहे थे, मतलब कच्चा मांस खा रहे थे. अ पीस ऑफ फ्लैश, एक मांस का टुकड़ा, fell into the fire and got roasted. एक छोटा सा टुकड़ा मांस का आग में गिर गया और भुन गया. got roasted. When the early man ate it, तो और जब अर्ली मैन ने उसको खाया, वो रोस्ट किया हुआ फ्लैश खाया, he found it tastier and softer. तो उनको वो खाने में बहुत टेस्टी और सॉफ्ट लगा. Thus slowly he learned to eat
कुक फूड, और ऐसे करके उन्होंने कुक्ड फूड खाना जो है शुरू किया। ऐसे उनको पता चला कि कुक्ड फूड आर मोर डिलीशियस दैन रॉ फूड। एज यू कैन सी in this picture, they are around the fire and cooking some flesh. They are roasting. Now come at this. The discovery of fire proved to be a great boon for the early men. और जो आग का आविष्कार था, जो डिस्कवरी ऑफ द फायर थी, that was to be a great boon of अर्ली मैन, और वो अर्ली मैन के लिए एक वरदान की तरह साबित हुई। ही एट कुक्ड फूड नाउ, वो अब कुक्ड फूड खाते थे, मतलब पका हुआ फ्लैश खाते थे। ही कुड कीप द वाइल्ड एनिमल अवे, क्योंकि वो आग जला के रखते थे तो उनकी गुफाओं से जो वाइल्ड एनिमल हैं वो भी दूर रहते थे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द लायन इज गोइंग, सो ही कुड कीप अवे द वाइल्ड एनिमल. He would light fire near the cave. It kept him warm in the cold season. It also lighted the cave. आग जलाने से कई सारी मुसीबतें दूर हुई, लाइक कि वो अब कुक्ड फूड खाते थे, वो अब लाइट में रह सकते थे क्योंकि वो लाइट आग से प्रकाश होता था, और जंगली जानवरों से उनको सुरक्षा मिलती थी। और जब सर्दियों का सीज़न होता था तो दे फेल्ट वार्म विद द फायर. अर्ली मैन ऑल्सो स्टार्ट वर्शिपिंग फायर. अर्ली मैन ने आग की पूजा करना शुरू किया. दस फायर बिकम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैन, और ऐसे करके जो फायर थी दैट बिकम्स द बेस्ट फ्रेंड. सो माई चिल्ड्रंस, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फायर. थैंक यू क्लास.